Good morning, dear children. I, T.N. Bharti, welcome you to the English class. Today we will learn about the solution of the questions and answers of wonderful waste. Okay, so first we will start with reading is fun. So let's read first question. What were the preparations in the palace for? पैलेस में किस चीज की तैयारी चल रही थी? द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रैंड डिनर. Okay, the preparations in the palace for a grand dinner. You can see this question here. Now come to the second question. Why did Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Why did Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Maharaja went into the kitchen. See this question, see this answer. Maharaja went into the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Now third question is, what had the cook planned to do with vegetable scraps? See the answer. The cook had planned to throw away the vegetable scraps. The cook had planned to throw away the vegetable scraps. Okay. Come to the fourth question. Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. Dear children, ingredients are the material which are required to prepare a dish. Okay. There are so many ingredients have been given, but all these ingredients cannot be used to prepare avial. So we have to choose which ingredient is appropriate to choose to prepare avial. Then, as you know, I have already taught you what will be the ingredients to prepare avial. Dear children, first ingredient will be chili. Second ingredient will be coconut. Third ingredient will be garlic. After that, curd, vegetable scraps. It is the most important ingredient. And to decorate the dish, he used curry leaves. Then there will be curry leaf. I have already written the answer in the solution part. Okay. See the solution part. I have written the answer of fourth also. You can copy it in your notebook. Okay. And now we come to the fourth question. Sorry, fifth question. Fifth question is the statement part. You have to choose whether the given statement is true or false. You have studied the story. Now you can tell which one is true and which one is false. The king had ordered a dinner in the palace. It is true or false? Yes, it is true. Okay. Now come to the second question. No one had heard or tasted avial before. किसी ने avial के बारे में पहले ना सुना था ना टेस्ट किया था. ये भी सही है क्योंकि avial तो उसी दिन पहली बार बना था. तो this is also true. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. क्या कुक ने पहले से प्लान किया हुआ था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप से मतलब अनदर एक और डिश बनाएगा, एवियल बनाएगा? नहीं, उसने तो प्लान किया था कि वो ही विल थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वो उनको फेंक देगा. तो ये क्या, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये फॉल्स है. ठीक है, इसके आगे हम लोग लिख देंगे फॉल्स. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in correct order. Dear students, there are some certain steps which we need to follow to prepare a dish. Okay, the steps are given randomly here. You have to choose the steps. First step is, first step is wash and clean the mix of vegetable bits. Okay, and after that cut the vegetable scraps into long strips. And the third step will be grind some coconut, green chilies and garlic. Okay, and the fourth step will be whip some curd and mix it in. And the fifth step is pour some coconut oil on top. Okay, and the sixth step will be decorate with curry leaves. And the final step, which is just a statement, is avial is ready.
Okay, dear children. So you have already seen that I have solved this question in the question itself. Then you can copy it in your notebook. Listen, how मतलब आप किस तरीके से इसको कॉपी में लिखेंगे? कॉपी में आपको लिखना है, पहले आप पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद यू विल पुट हेडिंग आंसर, आंसर की हेडिंग डालेंगे और नीचे यू विल राइट द स्टेप्स step by step in serial. First step will be on in the first line and the second step will be in the second line. तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद इन सारे स्टेप्स को पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लाइन से लिखेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर द रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप घर से स्कूल से जब घर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो आपको उन स्टेप्स को सीरियली चूज करना है और फिर यहाँ पर लिखना है। तो let's start. First, we will read all the options and after that we will pick the options according to our routine. Okay, let's read first. Pack school bag, put away school bag, have lunch, read a storybook, chat with mummy about school, sleep for a while, wash up, do the homework, watch TV, go to play, change out of school uniform. Dear children, first of all, what we do when we reach home after the school? After school, when we reach home, we put away the school bag. Put away the school bag. And after that, we change out our school uniform. Okay, and third step will be wash up. We wash our body with water, and after that we will have lunch, and after having lunch we complete our homework, do the homework. Okay, the fifth final step is missing here in the PDF format. I have created it, but you may write it from your book also. You can take help of your book and write it down. As I have given the option, and just for your comfort, just for your convenience, I have tick it. ओके, अब आगे आइए, अब नेक्स्ट पेज पर आइए। अब देखते हैं, पहले मैं बुक में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो पीडीएफ जो मैंने जनरेट किया है, जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें पहले मैंने बुक रखा हुआ है और उसके बाद आपके लिए सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। तो आप लोग लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, रोक के आराम से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेट्स टॉक पार्ट में पढ़ रहा हूँ। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम। तो महाराजा एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने ऑर्डर किया कि तुम जो ये वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं इनको यूज करो, इनको फेंको मत। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। डियर चिल्ड्रन, अब देखिए, ये चीज जो है, ये जो आपका क्वेश्चन है लेट्स टॉक, इट इज अ प्रोजेक्ट वर्क या ग्रुप एक्टिविटी है ये। इसको आप लोग या तो मिलजुल के कर सकते हैं या तो घर पर आराम से बैठकर कर सकते हैं। देन वी ऑल नो दैट इट इज नेशनल लॉकडाउन एंड ऑल ऑफ यू आर at your homes, so you can do it at your own. Take the help of your elders and complete it. Okay, now come to the word building part. Word building part is pair work. We have to write two meanings of same word. Okay, then let's start. Some words have more than one meaning, as I have already told you that we have to write two meanings of the same word. For example, point. Point meaning noun. If point means to a noun, then it will be meaning will be a dot in print or writing, full stop, decimal, the number you score in a game. If point will be a verb, yeah, used point will be used as a verb, then the meaning will be to show or call attention to something. Okay, look up the following words in the dictionary and they may have more than one meaning. List these meanings. Dear students, I suggest you to take the help of dictionary to write the answer. Your answer may be different from me. Okay, listen carefully. Your answer may be different from my answer. You are advised to take the help of dictionary, find out the meaning of these words, okay, and write it down at your own. Though I have given the answer in the solution part, still you may refer to dictionary also. You may get so many new meanings to learn. Okay,
That's why I'm suggesting you to refer the dictionary. So let's start. First, ground. So come to the solution part. Here is the solution part. Ground means past form of grind, land or field. If it is used as verb, तो वर्ब के अगर वर्ब होगा तो पास्ट फॉर्म ऑफ ग्राइंड होगा, और नाउन होगा तो लैंड या फील्ड होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये जो मैंने रफ लिखा था वो आपको नहीं लिखना है, आप बस ऐसे लिख दीजिए। ग्राउंड, ग्राउंड की दो मीनिंग होगी, पास्ट फॉर्म ऑफ ग्राइंड एंड सेकेंड वन इज लैंड और फील्ड। सर्वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू चेक बाय कलेक्टिंग डेटा, और सेकेंड इसकी मीनिंग होगी मैप और स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड और गैदर्ड इंफॉर्मेशन। ओके, देखिए ये सर्वे हो गया। अब आइए स्क्रैप्स पर। स्क्रैप्स मीन्स इसका पहला मीनिंग हो जाएगा वेस्ट मटेरियल और सेकंड मीनिंग हो जाएगा स्मॉल पीसेज। स्टर्नली, स्टर्नली का फर्स्ट मीनिंग हो जाएगा स्ट्रिक्टली और सेकंड मीनिंग हो जाएगा इन अ हार्श मैनर। एंड कम टू द लास्ट वन, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव और अपीलिंग। ओके, यू मे फाइंड different meanings in dictionary. Okay, come to the next page. Make a new word by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. See, पाउंड का ed लगा देंगे तो पाउंडेड हो जाएगा, ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म्स चेंज करेंगे, अगर पास्ट फॉर्म में पाउंडेड हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ing लगाएंगे तो कंटिन्यूअस में पाउंडिंग हो जाएगा, ठीक है, ing। तो आपको अभी टेंस में नहीं जाना है, आपको सिंपली ed और ing के यूज को जानना है कि ed और ing कब लगता है। तो ed और ing लगता है जब कोई वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब में हम क्या करते हैं, वर्ब में हम ing और ed लगा सकते हैं उनके फॉर्म्स को चेंज करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो पाउंड क्या है, एक वर्ब है, पाउंडेड हो गया, पाउंडिंग हो गया। ट्राई भी एक वर्ब है, ट्राइड और ट्राइंग हो गया। लार्ज, लार्ज इज एन एडजेक्टिव। ओके, लार्ज इन एडजेक्टिव जो होता है उसके क्या होते हैं, डिग्रीज होती हैं, ठीक है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये नॉर्मल डिग्री हो गया, फर्स्ट डिग्री है लार्ज की, लार्ज। इसका कंपैरेटिव अगर दो लोगों में कंपेयर करेंगे, विच वन इज लार्जर बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, तो ई आर लगने के बाद लार्जर, लार्जर मीन्स दो लोगों की जब तुलना की जाती है तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। लार्जर, दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो इस डिग्री का प्रयोग किया जाता है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन समवन इज मोस्ट, इट मींस व्हेन समवन इज सुपर ऑफ ऑल, देन वी यूज इट, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा होगा। विच वन इज लार्जेस्ट अमॉन्ग द स्टैचूज इन इंडिया, the largest statue in India, or you may say in world, is Statue of Unity, largest. Okay, new, new is also an adjective, newer, newest, tasty, tested, testing, tastier, tastiest. Okay, tasty is used as a verb and used as an adjective also, just as point, point एक क्या था, point एक adjective भी था और पॉइंट एक नाउन भी था। उसी तरह टेस्टी जो है एक वर्ब की तरह भी यूज होता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है। और जो वाइज है, अब देखिए टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टिएस्ट। वाइज जो है, वाइज क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये वाइजर और वाइजेस्ट। अब एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये अभी आपको मैंने ग्रामर पार्ट में बहुत अच्छे से, हो सकता है आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो या आप पहले से जानते हो, लेकिन आपको इस क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें चिंता की बात नहीं है, आप अभी जो पढ़ाया जा रहा है, जो सामने है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। देखिए अब वाइज है, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है, ये वाइज है, इसका वाइजर और वाइजेस्ट, ठीक है। अब स्टेयर क्या है, स्टेयर जो है एक वर्ब है, स्टेयर्ड और स्टेयरिंग। क्लीन क्या है, क्लीन क्या है, क्लीन वर्ब की तरह भी यूज होता है और क्लीन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो क्लीन का क्लीन्ड होगा, क्लीनिंग होगा, क्लीनर होगा और क्लीनेस्ट होगा, ठीक है। अब आया है डू एनी ऑफ दीज। अब यहां पर देखिए, डू एनी ऑफ दीज वर्ड यूज ऑल ऑफ फोर एंडिंग्स, यस। चारों जिसमें है
तो ये चारों के लिए तो दो ही है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों का ये वाला पार्ट लिख देंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों का ये वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे। देखिए इन दोनों का ये वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे टेस्टी और क्लीन, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखिए अब आगे आते हैं फाइंड आउट पर। ठीक है प्यारे बच्चों, फाइंड आउट पर अब आप देखेंगे नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट or festival when you are unwell, and third one is every day share information with your friends. Actually this information you have to find out from your home, for your neighbor, for sorry, from your neighborhood, but I have written the answer here. You may refer to your parents, you may refer to your neighborhood to know more. Okay, so to write in your notebook you can refer to this answer. See, this is answer of find out. Okay, find out is name food that is made in your home for a feast. किसी फीस्ट या फेस्टिवल के दिन क्या बनता है, पूरी, पुलाव, पनीर, दाल। ठीक है, नॉर्मली यही बनता है, बाकी बहुत सारे लोग अपनी चॉइस के हिसाब से बनाते हैं, बट आई हैव रिटन दिस आंसर एज पर माई नॉलेज, एज पर माई कन्वीनियंस। एंड द सेकेंड वन इज व्हेन यू आर अनवेल, जब आप थोड़ा तबीयत खराब होती है या फिर अच्छा फील नहीं करते हैं तो क्या लेते हैं, कभी कभार चाय और कॉफ़ी भी पीते हैं हम लोग, जब बुखार होता है ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं कि एक कप कॉफ़ी पी लीजिए या चाय पी लीजिए। ठीक है, और नॉर्मली जब लोग अनवेल होते हैं, उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता, तो खिचड़ी भी उनको दिया जाता है। तो नॉर्मली ये दो चीजें आप लिख सकते हैं आंसर में। एवरीडे, व्हाट वी ईट एवरीडे, दाल राइस, दाल राइस, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड चपाती एटसेट्रा। ओके, some of may some of you may differ with my point of view, you may write your own answer. Okay, it is not necessary that you write my answer, but for your convenience I have written all the answer here. Okay dear children, आप इस पेज को देख लीजिए, है ना। अब इस पेज को मैं यहाँ पर रोक देता हूँ और आप लोग आराम से इसको देख लीजिए, और इस पेज को रोक करके इसमें से आप लोग आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पेज को यहाँ पर पॉज किया हुआ है, आराम से आप लोग देख के लिख सकते हैं। इस पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख के लिख लीजिए। अब देखिए उसी में जो उसी पेज पर है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है कि देखिए फाइंड आउट के नीचे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवियल इज अ डिश मेड इन केरला। एवियल इज अ डिश विच इज मेड इन केरला। केरला में ये डिश बनती है एवियल। ठीक है, तो क्या है, डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स। तो देखिए बहुत वेजिटेबल्स से मिक्स करके तो हमारे यहाँ क्या बनती है, खिचड़ी ही बनती है। तो खिचड़ी भी बन सकती है, फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्राइड राइस होता है, खिचड़ी होती है, या मिक्स वेज बोल सकते हैं, या पुलाव बोल सकते हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ दो चीज़ें लिखी हैं इजी करने के लिए, राइस, फ्राइड राइस और खिचड़ी। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे इंग्रेडिएंट्स पूछा गया है सेकेंड पार्ट में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड, तो ऊपर मैंने लिखा हुआ था खिचड़ी और फ्राइड राइस। यहाँ पूछा हुआ है नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स टू यूज टू मेक इट। एंड देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि राइट डाउन द रेसिपी। रेसिपी आई विल नॉट गिव इन द सॉल्यूशन, you have to ask to your parents, and you need not to write in your notebook. Okay, आपको कॉपी में ये नहीं लिखना है, ये दोनों पार्ट आपको कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ ये दोनों पार्ट लास्ट के थर्ड और फोर्थ ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, अपने खुद को जानने के लिए अगल बगल से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ ऊपर के दो पार्ट आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो चलिए उसको आप लोग आंसर देख लीजिए आगे के दो। देखिए पहला व्हाट इज इट कॉल्ड, खिचड़ी, फ्राइड राइस। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स टू यूज टू मेक इट। खिचड़ी या फ्राइड राइस बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो देखिए राइस, वाटर, टर्मरिक, दाल, वेजिटेबल्स, करी लीव्स, साल्ट एटसेट्रा। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। देखिए अब आपका ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग इसको एक बार मैं स्क्रीन को यहाँ पर आपके सामने रोक देता हूँ,
आप लोग आराम से इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी को देख करके आप लोग आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।